So our main topic is today is how to write fast of all on the blackboard. It is a whiteboard, so called it's a blackboard. So our main focus will be today. It is actually the demonstration how to teach. That means the teaching demonstration. Okay. So first of all, as you can see, all that it has been written already here. That is a class, section, date, subject, unit, and today's topic. Okay. I'm talking in English, but actually the basic thing is when you are in a Bengali medium students, you will go to the schools and you are writing the lesson plans in Bengali often. So you will have to teach in Bengali and have to written all the things in Bengali. And in case of whether you are an English medium student or you don't know in talking in Bengali, then you will have to talk in Hindi and write all the things in Hindi. Okay. I am writing in English only because of all of the students will be able to understand easily about the thing. Okay. So first of all, as you can see, first work of all of the students is first come into the class and then write these things on the board. As you can see that the today's topic is empty, not written yet. Okay. So the next thing is the standing position in front of the blackboard. Okay. So as you can see that I am standing right here in the leaving this blackboard quite empty. Okay. So standing quite distance. That will help the students to see clearly. And the writing position. When you write in about a 45-degree angle. Okay. You will write have to in the 45-degree angle. Leaving this like this. That you are writing someone that is an immune. Okay. So it is an immune. I am writing this, leaving this area. Next, the wiping procedure. Okay. Suppose it is a duster. So how I will use this? This is from top to bottom, not keeping that once again. Just top to bottom, top to bottom. Okay. Top to bottom, and there will be no sound while you are wiping, and everything will be smooth. Okay. Next, the next thing is to just starting. So when you come into the class, into the first, you can say that hello students, good morning everyone, or you can say that hello Sabai, good morning, like this, and then you have to start. What you will start? Actually, you will start first of all that look this. Basically, today's topic, our unit is immune system. Suppose I am giving you suppose a demo. That is, we will going to discuss about the antibody today. So our topic is antibody. But first of all, we will not tell the students about we are going to discuss that antibody. We are just going to tell them serially and keeping that previous questions in knowledge. Okay. So first of all, we come into the class. We will say, sorry. First of all, we come into the class. We will write these things, and then we will say, "Good morning, students. How are you?" That's all. Okay. Next, we will give a simple question. Like I बांग्ला बोलছি तुम्हारे सवाल डिसीज है तो आप लोग को सभी को डिसीज होता है ना, बोलेंगे आंसर क्या आएगा स्टूडेंट के पास? हाँ आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि हम सभी क्या मेडिसिन खाना पड़ता है हम लोगों को, हमारे सवाल के ओषुध खावा दरकार है? Students will answer that no. So then we can ask the questions. So ये जे हमरा सुस्त हो जाए, हम लोग जो सुस्त हो जाते हैं खुद से, तो कैसे सुस्त होते हैं? कौन सा मैकेनिज्म है हमारे बॉडी के अंदर जो हमें सुस्त करते हैं? तो वो आंसर आएगा इम्यून सिस्टम. ओके. एंड देन यू कैन आस्क another question that can you name the particle or the molecule which is present into the body which actually does this job? कौन सा वो मॉलिक्यूल है, मटेरियल है और स्ट्रक्चर है जिससे हम कह सकते हैं कि हाँ ये काम कर सकता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एंटीबॉडी. तो वो कौन बोलेंगे? स्टूडेंट्स बोलेगा. स्टूडेंट का एक क्वेश्चन आंसर का दे, स्टूडेंट्स विल गिव द आंसर, एंड देन व्हेन दे विल गिव दैट आंसर एंटीबॉडी, देन you are permitted to write here that our today's topic is antibody. ANTIBODY. Okay, that's antibody. Okay.
Now today's topic, the first work has been done. Now next procedure is why you are writing anything on the board or drawing some pictures or anything. You have to constantly at that time have to speak. आप लोगों को कुछ बोलना पड़ेगा. जब आप लोग बोर्ड में कुछ लिख रहे हो तब आप लोगों को बोर्ड में लिखते हुए आप लोगों को कुछ बोलना पड़ेगा. आप लोग जब बोल रहे हो then you have to speak also. What you are writing you have to speak. Okay. Next are coming to the antibody. So our topic today हम लोग क्या पढ़ाने जा रहे हैं? एंटीबॉडी. सो ये स्टूडेंट लोग के आंसर देने के बाद तो ये वो हमारा पहला जो स्टेज है इंट्रोडक्शन वो खत्म हो गया है यहाँ पे. ठीक है. अभी नेक्स्ट आता है पॉइंटर का यूज कैसे करना है. ठीक है. जैसे आप लोग देख सकते हैं मैंने ये लेफ्ट हैंड में पॉइंटर पकड़ा हुआ है. पॉइंटर आप लोगों को पता है कि एक लंबा सा एक लकड़ी का डंडा होगा शायद. वो डंडा जो है उसमें हम उसको दिखा के यहाँ पर दिखाएंगे कि कैसे ये लिखना है. लेफ्ट हैंड में इसको दिखाना है ये ऐसे इसको लिखना है ऐसे करना है. ठीक है. पर अब वंस इट यूज्ड देन यू हैव टू पुट इट हियर. एक बार यूज करने के बाद आपको यहाँ पे रख देना है कि आपको वो हाथ में नहीं रखना है और राइट हैंड में इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है. अगर सपोज आप लोग पढ़ा रहे के बाद आप लोग इसको लिख रहे हो तो आपको उसको छोड़ देना है. ठीक है. अगर आप यहाँ पे भी स्टैंडिंग होके आप कर सकते हो. आप यहाँ पे दिखा सकते हो राइट हैंड में. पर इस वक्त आपको लेफ्ट हैंड में ही आपको उसको दिखाना पड़ेगा पॉइंटर को, राइट हैंड में नहीं. ठीक है. एक बार ये काम हो जाए फिर आप टॉपिक के अंदर आ सकते हैं या फिर आप ये कर सकते हैं कि आप इसको वहाँ पे लिख सकते हो. अगर आप एक बार लिख लिए वहाँ पे फिर आप उसको पॉइंटर को रख देना है आपको. बस यही चीज आपको करना है. अभी नेक्स्ट में आते हैं हम. जैसे बॉडी मूवमेंट ये एक स्किल है. ठीक है. तो बॉडी मूवमेंट कैसे करना है? जैसे कि पेंडुलम की तरह एक बार यहाँ से वहाँ ऐसे नहीं, आप मूव करो. आप जैसे पढ़ा रहे हो तो ब्लैक बोर्ड को छोड़ के हमेशा ब्लैक बोर्ड को आपको छोड़ देना है. छोड़ के बाद आप मूव करो थोड़ा थोड़ा. आप स्टूडेंट के सामने भी जा सकते हो और स्टूडेंट के पास भी जा सकते हो, उसको क्वेश्चन पूछते हो. तो ये थोड़ा बॉडी मूवमेंट है. एक जगह पे आप स्टैग्नेंट नहीं, आपको थोड़ा मूव करना पड़ेगा. ठीक है. तो once you move the students will grow more attention to the topic. So इसलिए बेसिकली ये मूवमेंट होता है. तो ये कंप्लीट होता है यहाँ पे. ठीक है. अभी नेक्स्ट आते हैं एंटीबॉडी जो पढ़ा रहे हैं. तो नेक्स्ट स्टेप में क्या है? सब्जेक्ट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ सब्जेक्ट. तो आपको लेसन प्लान में है जैसे कि हम बोलते हैं तो फिर आप क्या है यही स्किल है कि आप यहाँ पे एज इट इज चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन यू हैव टू इंटरेक्ट विद द स्टूडेंट्स, आस्क द क्वेश्चंस. तो क्वेश्चनिंग स्किल कौन सा है? ए है. आपको ये पढ़ाने के बाद खुद एंटीबॉडी का डेफिनेशन नहीं बोलना है. आपको ये बोलना है स्टूडेंट्स को कि आप लोगों को किसी को पता है एंटीबॉडी के बारे में. तो स्टूडेंट्स को कुछ तो स्टूडेंट वहाँ पे होगा जो आंसर देगा हाँ पता है. आपको ये पूछना है कि क्यों एंटीबॉडी लगता है. तो उनके पास एंटीजन का जो रिलेटेड क्वेश्चन है टॉपिक वो आएगा. तो आपको ये पूछना है कि अगर आप झाड़ू देते हो ना, अब झाड़ू देते हुए कोई किसी को जुकाम आ जाता है. ठीक है. तो वो किस लिए आता है? क्योंकि वो फॉरेन पार्टिकल है. तो वहाँ पे जो फॉरेन पार्टिकल है वो जो आता है तो उसमें क्या है उसको जुकाम आता है. तो ये एंटीजेनिक एक प्रोसीड्यूर है. तो वहाँ पे एंटीजन के हिसाब से बॉडी में जो एंटीबॉडी है वो अगेंस्ट में एक इम्यून सिस्टम पैदा करता है. इसलिए ऐसा होता है. तो ये स्टूडेंट ही आंसर पूछेंगे, स्टूडेंट के साथ ही आंसर आएगा. ठीक है. तो इस तरह से आप इंटरेक्शंस एंड क्वेश्चन स्किल कर सकते हो. जैसे कि नेक्स्ट आप ये पूछ सकते हो कि हमारे जो एंटीजन है, ठीक है, एंटीजन है ये दोनों तरह की है. एक है एक्सो एंड है एंडो. सो ये दोनों तरह की है एक्सो एंडो. किसी को पता है एंडो का मतलब क्या है, एक्सो का मतलब क्या है? तो ये जो है मतलब आप आस्क कर रहे हो कि उसका मीनिंग क्या है. बंगाली स्टूडेंट्स बंगाली में जवाब देंगे कि एक्सो की मतलब है बाहर, मतलब बाहरी. एंडो की मतलब है अंदर. दैट मींस जैसे कि हमारा जो एक खून का रेणु होता है वो बाहर से आता है तो इसको हम एंडोजेनस एंटीजन कहते हैं. अब अगर आप इस तरह से किसी स्टूडेंट को क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, कोई दूसरा कोई एग्जांपल दे सकता है. तो स्टूडेंट में से कोई बोलेगा हाँ सर कि मुझे जब झाड़ू देते हैं तो बहुत ज्यादा जुकाम आ जाता है. तो वो एक एग्जांपल हो जाता है एंडोजेनस का. तो इस तरह से आप इंटरेक्शन कर रहे हो स्टूडेंट के साथ, फिर आप आगे टॉपिक को जा रहे हो. ठीक है. तो इस तरह से होता है क्वेश्चनिंग स्किल एंड इंटरेक्शन स्किल. फिर नेक्स्ट आप ब्लैक बोर्ड का यूज भी आप देख रहे हो कैसे मैं इसको लिख रहा हूँ,
कैसे इसको आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो ये ब्लैक बोर्ड का यूज हो रहा है, ठीक है। और इसको इस तरह से पूछना है, वाइप करने का यही प्रोसीजर है, जैसे ऊपर से नीचे, ठीक है। अभी नेक्स्ट, ब्लैक बोर्ड को लिखने के वक्त ये हिल रहा है, इसलिए मुझे पकड़ना पड़ रहा है। पर आप लोग जब पढ़ाओगे तो ब्लैक बोर्ड को टच नहीं करना है, सिर्फ आप लोग को इस तरह से लिखना है, ठीक है। अभी डस्टर ये है, डस्टर मेरे पास केबिन नहीं है, इसलिए मैं इसको रख नहीं पा रहा हूँ। डस्टर का यूज आपको पता है, जो एक काठ का टुकड़ा है वो हमेशा ऊपर रहेगा, और जो जो एक जो है जिससे हम पूछते हैं वो नीचे रहेगा, इस तरह से, ठीक है। ये ब्लैक बोर्ड को रखने का स्टाइल है। अभी फिलहाल नहीं है, इसलिए मैं इसको एक रखता हूँ। तो ये बेसिकली टॉपिक है। अब फिर नेक्स्ट हम टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। जैसे कि किसी को एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर पता है, ये इस तरह का होता है कि एंटीबॉडी ए होता है, एंटीबॉडी जी होता है, एंटीबॉडी एम होता है, एंटीबॉडी इसमें आई होता है, एंटीबॉडी ई होता है, ठीक है। तो इस तरह से कितने एंटीबॉडी होते हैं? 5 एंटीबॉडी होते हैं, ठीक है। ये हमने पढ़ा है। अभी नेक्स्ट, अब जो इसको जब आप क्वेश्चंस आपकी when you will ask these questions to the students, you will first have to wipe this, okay, like this. You have to first of all wipe this, you have to wipe this, and then you have to ask the questions to the students, how many antibody we have, can you answer? Then आपको पहले से सिखा के रखना है कि हैंड राइज करना है, मुंह पे नहीं बोलना है, ठीक है। तो वो मुंह पे नहीं बोलेंगे, वो सिर्फ हैंड राइज करेंगे। किसी एक को आप चूज करके उसको नाम से भी आप पुकार सकते हो, उसको बोलेंगे आपकी कौन सी तरह की एंटीबॉडी है, आपको क्वेश्चंस करना है, वो आंसर देगा। कितने एंटीबॉडी है सर? 5 एंटीबॉडी है, ठीक है। फिर आपको बोला है वेरी गुड। ये जो मैंने वेरी गुड बोला, ये होता है रीइंफोर्समेंट स्किल, मतलब आपको उसको उत्साह प्रदान किया। तो एवरी टाइम जब स्टूडेंट्स आंसर देंगे सही, उनको बोलना है वेरी गुड। अगर गलत आंसर देते हैं तब भी उनको नहीं बोलना है कि नहीं, ठीक नहीं, सही नहीं। आपको दूसरे बच्चे से वो आंसर लेके आपको फिर उसको बोलना है यही सही आंसर है, तो सीख लो, आप यही बोलोगे। इस तरह से किसी बच्चे को डांटना और फिर गलत है ऐसा भी नहीं बोला जाता है, ठीक है। ये स्किल है। तो फिर हम इस तरह से जो है आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ के हम उस टॉपिक पे जाके, जैसे पूरा है हमारा, हम इस वक्त तो डेमोन्स्ट्रेशन दे रही है, इसलिए बताने की जरूरत नहीं है। इस तरह से पता है आप लोगों का एंटीबॉडी क्या है। आप इसका जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर भी आप एक ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से आप उसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हो, क्या है इसका, ठीक है। फिर एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद आप उसको सिखा भी सकते हो, बोल सकते हो कि यहाँ पे जो बॉन्ड होता है वो इस तरह से बॉन्डिंग होता है, ये लाइट चेन है, ये लाइट चेन है, और ये हेवी चेन है। हेवी चेन में कितने अमाइनो एसिड्स आते हैं? 400 अमाइनो एसिड्स आते हैं। इस यहाँ पे 200 अमाइनो एसिड्स होता है। तो इस तरह से आप जो भी आगे जाएंगे इस तरह से बोल के जाएंगे, और फिर अगर आप क्वेश्चंस पूछते हैं तो इस तरह से पूछेंगे। और फिर नेक्स्ट हम एक एग्जांपल पे आते हैं कि ये जो बॉन्ड मैंने अभी अभी दिखाया, ठीक है, जैसे कि इसको कैसे रियल एग्जांपल देना है, ठीक है, वास्तव उदाहरण, ठीक है, जो है रियल एग्जांपल कैसे देना है ये हम बोलेंगे। जैसे कि हम बोलेंगे, जैसे कि सपोज ये मान लो ये दो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है, दो हेवी चेन है, तो ये अगर इस तरह से रखा हुआ है तो ये गिर जाएगा। तो इसको पकड़ के रखने के लिए क्या करते हैं हम, जैसे कि हम एक घर बनाते हैं, उस पे जो है आयरन देके उसका ढांचा बनाया जाता है, स्ट्रक्चर। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको बांधेंगे, ठीक है, वी विल टाइट दिस। सो कैसे ही होगा, इस तरह से होगा जैसे कि हम इसको बॉन्ड देते हैं। तो कौन सा बॉन्ड है यहाँ पे, जैसे कि सल्फर का बॉन्ड है, एसएस बॉन्ड यहाँ पे यूज किया जाता है। तो इस तरह से आप जो रियल एग्जांपल है उसका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने पहले क्या बोला, पूरा बेसिक जो है वो, फिर हमने इंट्रोडक्शन स्टेज बोला, सब्जेक्ट का प्रेजेंटेशन किया, ठीक है, तो डिक्लेरेशन ऑफ टॉपिक भी वहाँ पे हो चुका था। फिर हम क्वेश्चंस के इंटरेक्शंस के आई कांटेक्ट विद द स्टूडेंट्स, इसलिए क्योंकि यहाँ पे मेरा जो स्टूडेंट्स नहीं है, मैं खुद वीडियो मोड पे आप लोगों को डेमो दे रहा हूँ, इसलिए मेरे पास स्टूडेंट्स नहीं है, इसलिए मैं आई कांटेक्ट इस तरह से बता नहीं सकता आप लोगों को। पर ये बता सकता हूँ कि जो स्टूडेंट्स आप लोगों को क्लासरूम का आइडिया है वो बैठे रहेंगे, तब जब स्टूडेंट्स बैठेंगे तो हमारा जो आँख है वो हर स्टूडेंट्स के पास जाना होगा, मतलब कि हर स्टूडेंट्स को आप देख रहे हो, ये आई कांटेक्ट होता है। तो वो आई कांटेक्ट हो जाता है वहाँ पे खत्म। तो आई कांटेक्ट में मैंने बोल दिया स्किल, फिर आप स्टूडेंट इंटरेक्शन, मतलब उसको पूछ के क्वेश्चंस करके इस तरह से आगे बढ़ना है, तो ये इंटरेक्शन स्किल हो
जाता है। और फिर नेक्स्ट में जो सिंपल क्वेश्चंस जैसे कि एंटीबॉडी कितने हैं, अब जब मैं इसको वाइड करने के बाद बोलूंगा कि कौन सा बॉन्ड यहाँ पे यूज होता है, फिर स्टूडेंट आंसर देगा तो क्वेश्चन स्किप हो जाता है। फिर हम बोलेंगे यहाँ पे कि वो आंसर अच्छा देते हैं तो हम वेरी गुड बोलते हैं, तो इन्फॉर्मेशन स्किप होता है। तो इस तरह से स्टेप वाइज हम आगे बढ़ेंगे, बोर्ड वर्क भी थोड़ा थोड़ा करते हुए, ठीक है। बस अभी लास्ट में आते हैं, बिल्कुल वो है इवैल्यूएशन स्टेज। और फिर इवैल्यूएशन स्टेज में आप लोग जब आएंगे लास्ट में, फिर एक स्टेप आपको खुद करना होता है एसिमिलेशन। वो क्या है, आप उस दिन क्लास में जहां तक जितने भी पढ़ाए हैं, जैसे कि पहले हम एंटीजन, जैसे कि आज मैंने बोला कि एंटीजन कितने टाइप्स के हैं, एंटीजन का एक्सोजेनस का डेफिनेशन क्या है, एंडोजेनस का, आप लोग जो जो बोले वो फिर मुंह में से बोलना है। जस्ट आपको ये बोलना है कि आज हम ये सीखे, आज हमको ये पता चला, ये सारे बातें। तो ये होता है आपको जो एसिमिलेशन स्टेज, मतलब वो उस दिन आप कितने सारे चीजों को सिखाए, इसको ध्यान में रखते हुए ये स्टेज बनाना है। तो ये है ये बेसिकली स्टेज। अभी आप नेक्स्ट में आप अगर जाओगे तो आपको आता है कि इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में आप जो पूरा उस दिन जब आपने टीचिंग की है तो वो जो मटेरियल है, मतलब लेसन प्लान में, उसमें आप तो लेसन प्लान कर चुके हैं और लेसन प्लान में जो है उसी हिसाब से आपको पढ़ाना है, ठीक है। लेसन प्लान में जो आपका है उसी हिसाब से आपको पढ़ाना है। तो लेसन प्लान में आपका जो भी क्वेश्चंस आपने रेडी करके रखा है इवैल्यूएशन स्टेज के लिए, वो क्वेश्चंस आपको पूछना है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ कि एंटीबॉडी किसे कहते हैं, कोई बच्चे बोल सकता है, स्टूडेंट्स को हाथ अपना उठाए वहाँ पे, तो स्टूडेंट्स विल रेज देयर हैंड, तो आप उनमें से चूज करके एनी वन यू कैन पिक एंड यू कैन आस्क द क्वेश्चंस। सो ये हो जाता है काम। इवैल्यूएशन स्टेज खत्म हो गया, ठीक है। अभी नेक्स्ट में आएंगे हम एक चीज जो है यूज, नेक्स्ट में आते हैं तो होमवर्क, ठीक है। तो होमवर्क क्या है, आप ये मुंह में बोल सकते हो कि ठीक है बच्चे, आप लोग सभी कॉपी अपना खोलो और वहाँ पे आप लोग लिख लो, और मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोग को घर से दे रहा हूँ करने के लिए, वो भी आपने जो लेसन प्लान में किया हुआ है वो सब चीजों को आपको बोलना है, तो लेसन प्लान हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से आप जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब आप उसको थैंक यू बोलेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, अब मेरा पूरा काम हो गया, ठीक है। तो मेरा अभी जो हो गया है पूरा, तो इसमें मैंने पूरा जो कैसे पढ़ाना है, मतलब हाउ टू टीच, पूरा जो है डेमोन्स्ट्रेशन कंप्लीट कर दिया है। अभी लास्ट में मेरा पूरा कंप्लीट हो गया। अभी लास्ट में मैं आप लोगों को दो चीज और बोल रहा हूँ, हाउ टू यूज द मॉडल एंड हाउ टू यूज द चार्ट, ओके। तो आप लोग जब हम, जैसे कि ये एंटीबॉडी, अगर आप इसको एक मॉडल बनाते हो 3D मॉडल, मतलब एक सोलर, मतलब उसको थर्मोकॉल का यूज करके आप एक मॉडल बना रहे हो, ठीक है। सपोज यहाँ पे टेबल है, जब आप इसको पढ़ाओगे तब उस मॉडल को, अगर किसी बाहर रखा हुआ है, उस मॉडल को आप उठा के फिर रखेंगे और उसको लेके स्टूडेंट के पास जाके आप लोग समझाओगे कि वो स्टूडेंट्स कौन सा है, कैसा है मॉडल की, कहाँ कैसा उसका अहमियत है, कौन सी जगह पे एंटीजन बाइंड होता है, ये सारी चीज को आपको डिस्क्राइब करना है। तो ये होता है मॉडल का यूज। और आप फिर जो आप थर्मोकॉल से या फिर आपको वो बनाना पड़ता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट आता है चार्ट। चार्ट के लिए मैं बेसिकली जो एक चीज आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, मेरा एक ये जो एक चीज मैंने दिखाया है, इसको कहते हैं रोलिंग बोर्ड, ठीक है। ये है रोलिंग बोर्ड, इस तरह से ये बाजार में मिल जाएगा लोगों। तो यहाँ पे सपोज नहीं, ये मेरा एक फिजिकल साइंस का है, लाइफ साइंस का है नहीं, पर यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे क्लिप देके आप इसका चार्ट भी बना सकते हो। जैसे कि क्लिप में तरह की एंटीबॉडीज है, वो एंटीबॉडीज के आप पिक्चर्स भी ड्रॉ कर सकते हो। इस तरह से आप एक चार्ट आप लोग बना सकते हो, ठीक है। इस तरह से एक चार्ट, या फिर अगर जरूरत पड़े तो दो चार्ट भी इस तरह से बना सकते हो। और ये चार्ट यूज करने का तरीका इस तरह, जहाँ पे ये जो ब्लैक बोर्ड है, ये ब्लैक बोर्ड जिस जगह पे होता है, इसको छोड़ के राइट पे या लेफ्ट पे आप लोग को वो जो होता है की लगाना है, और वहाँ पे आप लोग इस तरह से लिख सकते हो, दे सकते हो। फिर आप लोग को लेफ्ट हैंड में इसको पकड़ के आप लोग को दिखाना होगा ये क्या है, ठीक है। तो ये कब यूज करना है, जब आप उस चीज के बारे में डिस्क्राइब करने जा रहे हो, मतलब टॉपिक का प्रेजेंटेशन हो रहा है इस चीज का, तब आप इसको यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। और आप लोग को एक अगर यूज एक बार हो गया, फिर आप इसको घुमा के भी रख सकते हो, या फिर निकाल के आप इसको साइड में भी रख सकते हो, ठीक है। तो ये होता है
नॉट एंड मॉडल एंड चार्ट का जो यूज है, और बाकी का जो चीज है ये मैंने पूरा बोल दिया है। ठीक है, होप आप लोग सभी को समझ में आ गया है, और आप लोग इस चीज को बार बार ट्राई करो, बहुत इजी है, पर आप लोग को ट्राई करना पड़ेगा। तो जितने बार आप लोग इस चीज को ट्राई करोगे वो आपके लिए बेहतर होता जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।